بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو بخیر حوالے اور مختلف جو زبانوں میں جس طریقے سے ویلکم ہوتا ہے وہ کرتا ہوں اپنے شو میں۔ پاکستان اس وقت جس منجدھار میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنے کے لیے پاکستان میں اچھے حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ پنجاب کو بہتر بنانے کے لیے جو ترجیحات ہیں ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان میں لوگ میڈیسن سے اور ہاسپٹلز میں داخلہ نہ ملنے پر مر رہے ہیں تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جو بچے اسکول میں نہیں جا رہے ان کو اسکولوں میں واپس لانے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ سارے معاملات جو ہے نا، ان پر جب تک غور نہیں ہوگا، اس پر جب تک عمل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آج اپنے والد محترم سے لندن میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور یہ 8-10 دن کا وقفہ ہے کہ جب وہ پہلے یہاں موجود تھے، میاں صاحب 1 سال تک رہے، تو انہوں نے کسی قسم کی یہاں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کی، نہ یہاں کو پریس کانفرنس کی، نہ اب یہاں پر صحافیوں سے ملے۔ لیکن اب وہ لندن میں صحافیوں سے مل رہے ہیں، امریکہ میں بھی وہ پریس کانفرنس کر کے آئے ہیں، جس میں انہوں نے اکتشاف کیا کہ میری بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ پی اے کو ہم خرید لیے جائے۔ جناب میاں نواز شریف صاحب، پہلے بھی آپ نے سارا کچھ ایسے ہی کیا۔ پاکستان میں جب سے آپ حکمران بنے ہیں تمام اچھی چیزیں آپ نے خریدی، اونے پونے خریدی، اور ان میں آپ نے اربوں خربوں کا فائدہ اٹھایا۔ اب اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ آ جاتی ہیں، آپ مشورہ کر لیں، آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ کس طریقے سے آپ پی ای کو خریدتے ہیں، عوام آپ کو خریدنے دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے حکمرانوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ لی ہے۔ جس طرح تارڑ نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان پر حملہ کیا، اور پی ٹی آئی کے ارکان نے جس طریقے سے انہیں تھپڑ اور مکے مار کر ان کو جواب دیا، تو یہ تیزی ہے کہ ایک کام وقت سے پہلے ہو جائے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ترمیم بھی اگر آپ لاتے ہیں اس پر قومی اسمبلی میں پیش کر کے اس پر بحث کی جائے، لیکن جب آپ بحث نہیں کریں گے تو پھر آپ کو تھپڑ ہی پڑیں گے۔ وہ پڑ چکے ہیں اور مزید بھی پڑھنے کا امکان ہے۔ اب جس طریقے سے پاکستان میں قانون سازی کی جاتی ہے کہ جو وہ لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے ان کی بیگمات کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی بچیوں بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے والدین کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایون کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے، اور خاص طور پر آج جو امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں ٹرمپ کی جیت واضح ہو گئی ہے، اور مختلف امور سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹرمپ جیت چکے ہیں، ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور صحافی، سینئر تجزیہ نگار، اور جو لندن میں سالہ سال سے مقیم ہیں، ان کا نام بھی جناب مقیم احمد خان صاحب ہے۔ میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مقیم احمد خان صاحب، السلام علیکم۔ تھینک یو جی، وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ دوسرے ہمارے جو مقتدر رہنما جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زیبا ناز صاحبہ جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور مانچسٹر سے جناب ہمایوں صاحب جو کہ دبنگ اور نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور فیصل آباد سے ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں جو کہ مختلف اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، اور ان کا نام ہے زید صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تو میں یہاں شروع کرتا ہوں جناب مقیم احمد صاحب، آپ یہ بتائیں پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور امریکہ کا جو الیکشن ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، آپ لندن میں بیٹھے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس جیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی سیاست کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے،
اور اس وقت کی صورتحال میں دونوں جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، بلکہ پہلے سے ہی کیے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس بات پر تکیہ کیے ہوئے تھی اور کئی تجزیہ نگار اس پر قائم دائم تھے کہ ٹرمپ کی جیت عمران خان کی رہائی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ ایک خوش فہمی ہے یا ایک غلط فہمی ہے۔ ہم چونکہ ہمیشہ امریکہ کے زیر دست رہے ہیں، ہم جتنی مرضی آزادی کے دعوے کر لیں، ہم جتنی مرضی توپیں چلا لیں، ہم جتنے مرضی بڑے بڑے نعرے لگا لیں، لیکن ہم غلامی کی فہرست سے باہر کبھی نہیں آئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر دور میں پاورفل ممالک نے یا ہمارے کفیل اور سپانسرڈ ممالک نے ہمارے ہاں حکومت سازی میں، اپوزیشن کو منانے میں، امداد دلوانے میں، جنگیں لگانے میں اور جنگیں بند کروانے میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ جی، یہ کہنا کہ ٹرمپ کی جیت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز نہیں ہوگی یا کوئی اچھا برا فیصلہ کسی وقت میں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ بڑی کمال کی بات آپ نے قیوم محمد صاحب کہی ہے۔ یہ ٹرمپ کی جیت کے اثرات جو آپ نے بات کی نا، ٹرمپ کی جیت کے اثرات پاکستان میں مرتب کیا ہوں گے، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تو سامنے کی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں وہاں پر جو ہے نا، ان کا رویہ مختلف رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ کملا ہیرس جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، باراک اوباما بھی اسی پارٹی کے رہنما تھے۔ سب سے زیادہ ڈرون حملے پاکستان میں ان کے دور میں ہوئے، لیکن اس کی حکومت، اس وقت کی جو ہماری حکومت تھی نا، وہ انڈرسٹینڈنگ میں تھی کہ ڈرون آپ حملے کرتے جائیں، ہم شور مچاتے جائیں۔ یہ منظر پہ چیزیں آ چکی ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، دیکھیں پبلک میں آپ نے کوئی بھی فیس رکھنا ہوگا۔ اب اگر عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو کون کہے گا کہ یہ عدالت سے جیت ہوئی ہے، اور کون کہے گا کہ نہیں یہ تو بیرونی مداخلت ہوئی ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ ریپبلکن جس کی قیادت اس وقت تقریباً ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ چونکہ جنگ بندی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے پوری کیمپین اسی تناظر میں کی ہے کہ میں دنیا میں جنگیں بند کراؤں گا۔ ایک ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ افغانستان سے آرمی انہوں نے نکالی، عراق سے فوج انہوں نے نکالی۔ تو یہ چیزیں، اسی چیز کے اوپر مسلم ووٹر، عرب ووٹر، ایشین ووٹر، وہ سارے سپلٹس تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اکثریت نے ٹرمپ کو سپورٹ کر دیا، کیونکہ یہ جنگ کے دوران اور خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں کملا ہیرس کا کردار جو ہے اور جو بائیڈن کا جو کردار ہے وہ ان کو لے کے بیٹھ گیا۔ یعنی اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں تو یہ دونوں جماعتوں کا ایک جیسا ہی رول ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس میں کٹنا خربوزہ ہی ہے اور چھری انہیں کے ہاتھ میں رہنی ہے۔ تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ یہ والا کسائی اچھی بوٹی بنائے گا یا دوسرا کسائی اچھی بنائے گا، کٹنا اس بکرے نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی زیادہ توقعات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے اگر ٹرمپ کی جیت میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا اسے لابنگ کی ہے یا ان کے پہلے سے تعلقات ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو اس کا بینیفٹ ضرور ہوگا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر ان کو بڑی یعنی کیا کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں آن بورڈ لے لیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اگر فوری طور پہ نہ ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد ضرور سامنے آئیں گے۔ اچھا قیوم صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ہمایوں صاحب زادہ صاحب نے، تو میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں؟ جی شکریہ، السلام علیکم۔ تو ہمیں فیصل آباد سے زاہد اقبال صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو سبزہ صاحب، آپ یہ بتائیں، ابھی جو بات ہم کر رہے تھے ٹرمپ کے جیتنے کی، پاکستان میں یہ خوشیاں منانے کی کہ اب عمران خان رہا ہو جائیں گے، اس پہ بھی آپ ذرا اپنی رائے، اپنے کومنٹ دیں۔
جی بہت شکریہ احسان صاحب. احسان صاحب, جہاں تک امریکی الیکشن ہے, امریکی صدر کا کردار بھی اب شاید اتنا اسٹرانگ یا اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب امریکہ میں بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یعنی ان کا کردار بہت زیادہ حکومتوں میں یا باقی پالیسیز میں نمایاں ہوتا ہے. جہاں تک امریکی پالیسی کا اس خطے میں جو کردار ہے یا اس میں جو مفادات ہیں, اس کا میرا نہیں خیال کہ کسی صدر یعنی بدلنے سے یا صدر کسی اور کے بننے سے کوئی بہت زیادہ کوئی اثرات ہوں گے یا کوئی بڑی چینج آئے گی. امریکی مفادات جو ہیں وہ اب پھر وہی بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے, اسے ہی پتہ ہے کہ کس خطے میں انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. اور بہت زیادہ بڑا فرق شاید نہ نظر آئے. جو حالات یا جو واقعات پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے, وہ امریکہ نے جس طرح سے اس کو چلانا چاہا تھا وہ شاید اسی طرح ہی چلتے رہیں گے اور اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل کے اسی طرح کا کردار ادا کرتی رہے گی. بہت فرق نہیں پڑے گا, بہت بڑا ایسا کوئی شاید چینج نہ آ سکے, مگر ہاں کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. نہیں, ہمارے ساتھ جو پاکستان کے لوگوں نے یہ امید لگا رکھی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان جیل سے باہر آئے گا, اس پر ذرا تھوڑی سی لپکشیں کیجیے. اب احسان صاحب, بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ شاید ہم نے ہر چیزیں اسی طرح کے خوابوں میں جو یعنی وہ خیالی توقعات جو ہے اسی سے وابستہ کر لیتے ہیں, اسی سے بنا لیتے ہیں. پھر وہی بات ہے جی کہ بہت بڑی شاید چینج نہ آئے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ رعایات یا کچھ مراد شاید اس میں مل جائیں, مگر کوئی اس طرح کی کوئی بڑی چینج جس میں ہم کہیں گے کہ عمران خان باہر آنا یا عمران خان کا اس طرح کے ٹرمپ آ جائے اور فوری طور پہ عمران خان کے ڈھول بجنے شروع ہو جائیں, شاید یہ ممکن نہ ہو سکے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ ٹائم لگے گا, دیر لگے گی, اور جو کچھ بھی ہوگا جس طرح کی بھی چینج آئے گی وہ آئے گی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہی, انہی کے توسط سے ہی آئے گی, انہی کے ہاتھوں ہی آئے گی, اور اسی کے ساتھ ہی جو ڈیل یا جو کچھ ایک پروسیس ہوگا اسی طرح ہی چلے گا. یہ زید اقبال صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ کا الیکشن ہے اور ٹرمپ کی جیت ہے, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور میرا کوشچن یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو خوش ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ آیا ہے اور تحریک انصاف کے سربراہ جیل سے باہر آ جائیں گے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ. میں تو ایک چھوٹی گزارش کروں گا کہ دیکھیں, الیکشن واقعتاً میں جیت گیا ہے, اس نے اکثریت بھی حاصل 277 ووٹ حاصل کر لیے ہیں, لیکن میں جو میری ذاتی رائے میں ڈونلڈ ٹرمپ اتنے سیریس آدمی نہیں ہے, وہ تو اتنے سنجیدہ آدمی نہیں ہے جتنے وہ ظاہر ہے وہ تو اس پاکستانی جو آبادی ہے وہاں پر جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے علاقے میں گئے ووٹ کے لیے, انہوں نے وہاں پر جا کے عمران خان کا ذکر بھی کیا کافی, انہوں نے بلکہ وہاں پہ ان لوگوں کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے, پھر انہوں نے مسلم امہ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرا کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, عمران خان ان کو قابل قبول نہیں ہے. آپ اس بات سے میری سبھی جتنے بھی پینلسٹ ہیں وہ اتفاق کریں گے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی عمران خان قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کہ سارا انہیں کے چکر چلا ہے, ان کو باہر کیا, پھر وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, پھر آپ دیکھیں بعد میں کیا ہوا, کس طرح الیکشن ہوئے, کیا انتخابات ہوئے, کس طرح اور کون لوگ پیچھے تھے. تو ظاہر ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ تو ایک ہی پیج پر ہوتی ہے ہر وقت, کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں, اور ظاہر ہے اپنی ساری دنیا میں جیسے بھی ماہر کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی بڑی اسٹرانگ ہے. اور واقعتاً حالیہ دنوں میں پینٹاگون نے کچھ عرصے سے بڑی ہی اپنی طاقت حاصل کر لی ہے امریکہ میں, صدر کو بھی وہ تھوڑا سا نہ. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی ایک صدر کبھی فیصلہ نہیں کرتا, وہاں پہ تو پورے تھنک ٹینک ہے جس نے پالیسیاں بنائی ہوتی ہیں اور وہ کافی عرصے تک چلتی رہتی ہیں, اور ان کے اپنے مفادات ہیں, اور وہ پالیسیاں انہیں مفادات. اقبال صاحب, ہم یہ اب طریق انصاف سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کس خوش فہمی میں ہے کہ عمران خان اس کی جیتنے کے بعد واپس آ جائے گا؟ جیزے بنا سے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احسان صاحب. یہ خوش فہمی نہیں ہے احسان صاحب, دوستوں کے لیے کام کرتے آئے. اگر ٹرمپ
इमरान खान के नाम पे अगर वहां पे वोट मांग सकता है, तो उसको मिले ना वोट वहां, मिले है ना, क्योंकि उसको पता है कि जो इमरान खान का विजन है, जो इमरान खान एक मजबूत लीडर है और पाकिस्तान से वो बड़ी असलियत से जीता है, और उस पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया में उसका वोट है, वोट बैंक है, और अवाम उसको दिल जान से पसंद करती है। तो इसलिए अवाम उसके साथ है, इंशाल्लाह ताला आपको तब्दीली नजर आएगी जल्दी। आप देखो ना कि इमरान खान जब वजीर आजम थे जी, उन्होंने अमेरिका में ऐलान किया कि मैं नवाज शरीफ के जाते एसी उतारूंगा, लेकिन वो तो एसी नहीं उतार सके थे। वो जालिम हुक्मरान नहीं थे, वो जालिम हुक्मरान नहीं थे, उनको पता था ये 4 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, फिर उन्होंने हुकूमत में रहे हैं, वो इस हया से ना, क्योंकि अब वाली हुकूमत ने तो हया शर्म है ही नहीं है ना, कि ये तो इतनी बेशर्मी के साथ सारे अपने होछे हटकंडे दिखा रहे हैं कि जेलों में आपने कभी सुना है कि जिस सेल में इमरान खान साहब रह रहे हैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे उसकी लाइट बंद कर देते हैं। मुझे आप ये बताएं, अब जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में जी आपने मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात कायम किए हैं, जी बिल्कुल किया, आपने नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कायम किए हैं, इसी तरह जिस तरह उन्होंने पंजाब में किए थे आपके खिलाफ, अब आपने वहां शुरू कर दिए, तो ये क्या पॉलिसी है, क्या सियासत है? एहसान साहब, अगर नून लीग वालों ने गुंडागर्दी की है तो गुंडागर्दी का जवाब हमें भी अब उसी तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि ये सख्ती इन्होंने दिखाई है, ये इन्होंने अपनी बेहवासियों के नजरिए के साथ काम किए हैं जो कि किसी को पसंद ही नहीं है। अवाम को जिस तरीके से इन्होंने रोला है, जिस तरीके से रोंधा है, जिस तरीके से अवाम को इन्होंने बेआबरू किया है, जिस तरीके से चादर और चार दीवारी को इन्होंने नाचाक किया है, उसका तो हिसाब अब इनको देना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि जब आपके हुक्मरान सियासतदानों के, आपके लीडरों के खिलाफ मुकदमात थे, उनको तो बाहर नहीं, अब मरियम के नवाज केस है, अब वो लंदन जा रही है, तो क्या किया? देखिए एहसान साहब, उन्होंने सबसे पहले आके तरमीमें पास क्यों की? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने केस साफ करवाए, केस खत्म करवाए, फिर उन्होंने वो तरमीम पास करवाई कि कोई हमारे ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। जज उन्होंने सारे चेंज कर दिए, वकला को सारे को उन्होंने चेंज किया, कौन कौन सी एलिगेशन लगा दी कि हमारे ऊपर कोई ये ना कह सके कि आप हुकूमत छोड़ें और निकल जाएं, हकामा वाली बात ना हो। वो सारी यही तरमीमें पास हुई। अब क्योंकि मुकर्रम साहब को लंदन में बैठे हैं जी, आज शरीफ फैमिली वहाँ है जी, मरियम नवाज आज जा रही है, हम उनसे ये माजरा पूछते हैं क्या कि वो पीआईए की खरीदारी के लिए सर जा रही है या कि और भी कुछ मामला है? जनाब मुकर्रम साहब, ये पीआईए से उनकी आमद का जोड़ना मेरा ख्याल है करीने कयास नहीं होगा, लेकिन मैं ये जो अभी हालिया डेवलपमेंट हुई है ना, सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन की, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, वो दोनों इसका हिस्सा बज़ाहिर नहीं बनना चाह रहे थे। ठीक। और ये तो जरदारी साहब की दुबई में फ्रैक्चर की खबर और क़याम की इतलात हैं, और ये जो फौरी तौर पे 26वीं तरमीम के बाद नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी है, मैं इसे इस तनाजुर में देखता हूँ कि कल को वो ये कह देंगे कि हम तो इस गुनाह का हिस्सा ही नहीं थे। अच्छा, क्यों? मियां साहब के बारे में ये एक बड़ी सोची समझी और करीने क्या बात थी कि जी वो एक्सटेंशन के हामी नहीं है, उन्होंने कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी वगैरह वगैरह। बाजवा वाला सिलसिला एक एक्सेप्शन था, लेकिन ये जो है मियां साहब का जाना, मैं ये समझता हूं कि वो दिली तौर पे इससे खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने लंदन रवानगी फौरी तौर पे की, और इसीलिए जरदारी साहब को जहाज से उतरते पांव में चोट लग गई। हाँ जी, ये बिल्कुल दोनों मेरे लिए दोनों यही है। और इसी वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान में ना होना और दुबई में उनका रुकना, ये भी मैं इसी तनाजुर में देखता हूँ। और उनके तो पेट पे चर्बी चढ़ गई ना बिलावल के। अच्छा, लेकिन यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि अब ये पीपल्स पार्टी ने जो स्टैंड लिया है कि जुडिशल कमीशन में हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, बिलावल भुट्टो ने नाम वापस ले लिया, वो मुल्क से वापस आके पार्टी के
सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और सियासी इत्तेहाद का फैसला करेंगे, ये सब गीदड़ भभकियां लग रही हैं मुझे। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ये सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन वाला रोला अपने सिर नहीं डालना चाह रहे थे कि कल को जलसों में उनका नाम ले लेके उन्हें कहा जाए कि ये लोग थे जिन्होंने इस मुल्क पे सिविल मार्शल लॉ मुसल्लत किया। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हम ना वहां मौजूद होंगे, ना हम वोट देंगे और ना हमारा नाम होगा। अच्छा मुकीम साहब, आप जैसे ये कहते थे कि अब जो सीटों वाला मसला था कि अपने अदलिया ने जो फैसला दिया उसमें तो पीटीआई ने सीटें मांगी ही नहीं है। अब इस तरह ये जो तीनों सर्विसेज चीफ की जो 5 साल मुद्दत कर दी गई उनकी चीफी की, ये उन्होंने नहीं मांगी, ये कहां से आ गई? बहरहाल जी ये उनका इख्तियार था, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसकी अखलाकियात पे जाएं और हमारी रिवायात पे जाएं, दुनिया भर की तारीख पर जाएं, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है और मेरे हिसाब से अननेसेसरी भी है। लेकिन उनकी करिए कि वो हाथी के पांव में सबके पांव, कि जिस वक्त ऐसी सूरत हाल होती है फिर वो बाद में कोई चूचरा नहीं करता। बाजवा को भी जिन्होंने एक्सटेंशन दी थी, चलो अब हम हुमायूं साहब ज़ारा साहब को इसमें शामिल करते हैं। हुमायूं साहब ये बताएं, ये जो तीनों सर्विस चीफ की 5 साल मुद्दत कर दी गई है, इसके कोई अवामी मफादात भी हैं? ये एक अवामी मसला था जिसका बहुत जरूरी था। एहसान साहब, आज तक अवामी मफादात या अवाम के साथ जुड़ी हुई चीज होती क्या है जो यहाँ पे जिसे राइज किया जाता हो? हमेशा अपनी ख्वाहिशात और अपने मफादात और वही चीज के एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अपनी पॉलिसीज थी, अपनी चीजें थी जिनको लेके वो चलना चाह रहे हैं और शायद उस तसलसल को काफी देर चलाना चाह रहे हैं, उसको लेके चलना चाह रहे हैं। तो उन चेहरों का रहना उनके लिए, उनकी नजर में बहुत जरूरी था, जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया। हुमायूं साहब से बात कर रहे थे कि ये जो तीनों सर्विसेज चीफ को 5 साल की बुनियाद कर दी गई है, इसके क्या फायदे होंगे या अवामी है, वो इस पे बात कर रहे थे। जी हुमायूं साहब। जी, जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि अवाम का तो इसमें कुछ भी नहीं था। बहुत अरसा पहले, बहुत महीनों पहले जो एक एक्सटेंशन का जो शोर बरपा था पाकिस्तान में, उसमें शक्ल ये दी गई, यानी दिखाया ये गया कि शायद जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एक्सटेंशन होनी है या उनका मामला होना है। और वही चीज थी जी कि बस वो दिखाया कुछ और गया और यानी होना कुछ और था। और जिस तरफ वो जाना चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे, जिस तरफ असल ये होनी थी एक्सटेंशन, वो हो गई है जी। और ये इस पे कोई आज नहीं, काफी टाइम से काम चल रहा था। और एहसान साहब, इसका अवाम के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं, ना कोई अवामी मफादात को। हुक्मरान ये कह रहे हैं हम जितनी भी तरमीम कर रहे हैं इसमें अवामी मफाद है, अवाम के लिए कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है हुक्मरानों का। तो जो अवाम के मफादात जहाँ पे थे, जहाँ जुड़े हुए थे, वो मामला तो हुए नहीं। जिस तरह आपने इलेक्शन को रोंदा, इलेक्शन को मसक किया, जिस तरह अवामी राय को आपने बिल्कुल एक साइड पे रख के अपनी मर्जी की सारी चीजें ठोसते गए। और आज भी अगर देखा जाए तो अवामी जो राय अमा है उसके जो भी चीजें हुई है उसके बरक्स हुई है। अवामी लीडर को आपने एक साइड पे कर दिया और अवामी जो भी एक राय थी उसको तो बिल्कुल ही। और जहां तक अवाम का यानी बाकी मामला में ताल्लुक है, अवामी मफादात को अगर देखा जाता तो जिस तरह अवाम के साथ इतनी बुरे तरीके से महंगाई का एक जिन जो यानी बिल्कुल उसको बेकाबू करके अवाम के सर पे ला खड़ा किया गया, ये कोई मफादात जो यानी उसके साथ अगर जुड़े होते तो बहुत पहले जो अवामी फैसले थे उनको तस्लीम किया जाता। किसी भी चीज में अवामी मफादात कोई यानी नहीं रखेंगे, ना देखेंगे और ना ही उसको कोई रखा जाता है। ये सारे अपने मफादात हैं, अपने उनके एक ज़ैद इकबाल साहब हमारे साथ फैसलाबाद से हैं, तो आप ये बताएं ज़ैद साहब क्या कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का और चीफ ऑफ एयर स्टाफ का 5 साल बुनियाद कर दी गई है, इससे पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा हुआ है? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अवामी मफाद को तो अहमियत दी नहीं जाती, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो मेरी बात है सभी पैनलिस्ट इत्तेफाक करेंगे कि आप देखें, आप जबकि सियासतदानों को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, बिलावल को, सभी को पता चल गया है कि एक फॉर्म 45 है, एक फॉर्म 47 है, तो अब उन्हें अवामी मफादात की बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देख लिया कि हम उन्हीं के मफादात की बात करें जिनके मफादात
से वो जीत के आते हैं। आप देख लें इस दफा क्या हुआ है, पाकिस्तानी सियासत में धांधली तो अब इस हद तक आ चुकी है कि किसी को हमारे होने वाले इंतखाबात से जरा भी नहीं एतबार होता। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सही फैसला किया। मेरा ख्याल है कि उन्हीं लोगों को अकोमोडेट कर लें जिन्होंने उन्हें अकोमोडेट किया है। तो दूसरी बात मैं जो आपसे कौन बात करनी चाहूंगा कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की है वो किसी से ढकी चुपी नहीं है। आप देख सकते हैं अदलिया में देखें हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं फायदा साहब, वो कैसे कैसे फैसले और कैसे कैसे उन कैमरा वो देखें उन्होंने अपना प्रोसीडिंग्स की हैं और किस तरह के उन्होंने वहां पे रिमार्क दिए हैं और किस तरह की बातें हुई हैं और अब क्या हालात है उनके। जो भी यहाँ पे रिटायर होता है उनके फैसलों का जवाब अवाम उन्हें लंदन में और मुख्तलिफ जगहों दे रहे हैं। जी ज़ेबानाज़ साहब, आप ये बताएं, वो रह नहीं सके। आप जो इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं, आपके साथ पहले जो इलेक्शन में हुआ है, क्या आप ये महसूस करती हैं कि इसी इंतजामिया के साथ, इसी हुकूमत के साथ अगर इलेक्शन हुई तो आप काबिल कबूल होंगे? आपको एहसान साहब, पहले तो मैं अपनी पहली बात का जवाब दूंगी क्योंकि मैं इन जितनी तरमीमें हैं हमारी पार्टी इनका डट के मुकाबला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे और कर दिया हमने चैलेंज भी, और इनके खिलाफ हम सड़कों पे भी निकलेंगे क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए बिल्कुल इस आईनी तरमीम के खात्मे के लिए सड़कों पर निकलना जरूरी है। पाकिस्तान में जो कुछ बंदरबाट की गई है इस पे निकलने के लिए सड़कों पे निकलना हमारा सबका बहुत जरूरी है। ये जैसे पीआई की बंदरबाट हो रही है, बाप बेटी आपस में एक दूसरे के सलाह बगैर गरी हो के तो ये बात कर रहे हैं क्योंकि जितने भी आईनी तरमीमें की गई हैं इनका जमा हासिल सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को हर तरीके से फंसाकर मुकदमों में उलझा के और मुकदमा झूठों को सच्चे बना के पेश किया जाए। इसको कई ऐसी इबरत ना सजा दी जाए कि ये हमारे बीच में ना हो, कल को ऐसा और बंदा भी कोई ना है। लेकिन हम क्योंकि इन जालिम हुक्मरानों को हम बता देना चाहती हूँ कि ये जो गड़ा आप जो आईनी तरमीमें जो आप इमरान खान के खिलाफ घड़ रहे हैं, ये पलंदे जो झूठ के आप घड़ रहे हैं, ये इनके गले ही पड़ेंगी क्योंकि आपने जिन लोगों को कहा भी पावर देने की भी इन्होंने कोशिश की, वही इनके लिए डंडे भी लेके खड़े होंगे। ये जो आप इलेक्शन का मुतालबा करें, इलेक्शन नए सिरे से हो, इसी इंतजामिया के जरिए हो जाए तो ठीक कबूल होंगे आपको? देखिए एहसान साहब, इलेक्शन जब होगा तो उसी तरीके से जिस तरीके से आवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान साहब को वोट दिया था, इंशाअल्लाह ताला बानी पीटीआई इमरान खान साहब असलियत से जीतेंगे और आवाम को काबिल कबूल इसलिए होगा कि वो इलेक्शन कमीशन। मैं अब लंदन जा रहा हूँ मुकीम अहमद साहब, आप ये बताएं, ये जो पीटीआई नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है तो यही जब इलेक्शन कमीशन होगा, यही हुकूमत होगी, यही सारे लोग 90 मिलियन तो वही इलेक्शन नहीं होंगे वैसे? एहसान साहब, एक सिर्फ मेरा सवाल पूरा होने दे। ये 90 मिलियन पाउंड का जो इन्होंने केस बनाया, मुझे बताए वो तो हवा में उड़ गया। मुझे बताइए ये अवामी मुतालबा था कि इनके सारे जो केस है ये थोपे जाए और उनके ऊपर इनको सजा नाफज की जाए। मैंने गुजारिश की है, ये ज़ेबानाज़ साहब और पीटीआई मुतालबा कर रही है ना कि नए इलेक्शन, तो जब इलेक्शन कमीशन यही होगा, बाकी सारी सूरत हाल यही होगी, तो ये इलेक्शन पहले जैसे होंगे या मुख्तलिफ होंगे? हमारे यहाँ तो जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे ही होंगे। नए इलेक्शन का मुतालबा पीटीआई अगर कर रही है तो मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि फिर वो क्या इन इलेक्शन के नताइज मान लेंगे और आप जमात इस्लामी को इससे शामिल कर लें। चलो जी, जमात इस्लामी को भी शामिल कर लिया, लेकिन वो क्या जमात इस्लामी ने पिछले इंतखाबात का नतीजा माना? क्या पीटीआई ने माना? क्या मौलाना साहब मान रहे हैं और क्या वो आइंदा मानेंगे? तो ये हमारे सियासतदानों ने फारिग वक्त में कोई ना कोई नया शोशा छोड़ना होता है और लहू गर्म रखने का है ये बहाना कि कुछ ना कुछ होता रहे हर वक्त। उन टीवी स्क्रीन पे वो चलते रहें और ना हुकूमत को चैन आए, ना हमारे वर्कर आराम से बैठें। अब ये 40 अरब रुपया खर्चा आया पिछले इलेक्शन पे हुकूमत का,
اور کینڈیڈیٹ کے खरबों रुपए इसमें चले गए, तो अब फिर ये मुतालबा करके इलेक्शन का ये अवाम को क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? अब मसला ये है कि पहले तो ये माने ना कि इलेक्शन में जो भी नतीजे आएंगे उसे मानेंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो बाहमी रजामंदी या कम से कम कोई यूनानिमस अप्रूवल के साथ हो, वरना यहाँ तो पहले किसी ने इलेक्शन नहीं माने 77 साल में, किसी इलेक्शन का नतीजा नहीं माना और ना ही आइंदा कोई मानेगा। ये चूं चूं का मुरब्बा इसी तरह ही चलता रहेगा। अमैन साहब मुझे ये बताएं कि पीटीआई पाकिस्तान में मुतालबा कर रही है नए इलेक्शन का, तो ये इलेक्शन में जब इलेक्शन कमीशन भी यही होगा। जी एहसान साहब बिल्कुल ठीक बात है जी, ये एक सिलसिला यानी सियासी जमातें हैं वो जी यही एक तरीका होता है कि शोर मचाए रखें और अपने आप को यानी दिखाए रखें, और बाकी ये चीज है जी कि वो बिल्कुल ठीक बात है जी कि इन्होंने भी एक उस पर कंप्रोमाइज कर लिया कि यही इलेक्शन कमीशन होगा, यही एस्टेब्लिशमेंट होगी, और कल को इन्हीं के साथ चलना है, इन्हीं के साथ ही उन्होंने इन्हीं की आशीर्वाद से ही अगर इक्तदार में आना है तो इन्हीं की आशीर्वाद ही होगी तो दोबारा आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। यही इलेक्शन कमीशन अगर हुआ भी, जब इस इलेक्शन कमीशन को अगर यानी पीटीआई को अगर वहां से मंजूरी नए इलेक्शन की मिल गई, यानी वो दरखास्त अगर कबूल होगी, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन भी ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ही मामला ठीक हो जाएंगे। ये कोई निजाम की बदकिस्मती है। ये कहीं डील हो रही है साहब, डील हो रही है? एहसान साहब डील का तो ज्यादा आपको पता होगा, और क्योंकि आप वहां बैठे और बहुत बाखबर है, हमारे इल्म में इस तरह की बातें नहीं आती और मुश्किल से है, मगर जो हालात हैं वो थोड़े से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की हद तक नजर आ रहे हैं जी, कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़ी सी नर्म हो रही है इमरान खान के या पीटीआई के, शायद इमरान खान के ना कह लें, और पीटीआई का मामला ज्यादा उसके हद तक कुछ नरम होते नजर आ रहे हैं। शायद पीटीआई को सियासत में अब उस तरह का रोल दिया जा रहा है जिसमें को पीटीआई नजर आए, और फिर वही बात है जी कि इलेक्शन ना तो पीटीआई के हाथ में है, ना शायद अब अवाम के हाथ में ये रहे हैं। जहां से होगा फिर अगर वहां से मंजूरी होगी तो इलेक्शन कमीशन भी सीधा हो जाएगा, और बाकी मामला बाकी जो अदारे हैं वो भी सीधे हो जाएंगे, और तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन में कोई बड़ी चेंज की शायद जरूरत भी ना पड़ेगी, कोई इस तरह का कोई मामला होगा भी नहीं कि जिसमें उन्हें ये जरूरत पड़े इलेक्शन कमीशन ही चेंज हो जाए, यही इलेक्शन कमीशन मंजूर भी हो जाएगा। मगर एहसान साहब अभी इलेक्शन और बाकी जिस तरह की मंजूरियां पीटीआई चाहती है वो बहुत अभी दूर नजर आ रही है, अभी बहुत नजदीक नजर नहीं आ रही, बड़ी इसमें कोई देर है, अभी बहुत दूरी है। जी ज़ेबना साहब आप ये बताएं कि जिस तरीके से आप मुतालबा था ना, अब सब ने कहा कि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर काबिल कबूल होंगे पीटीआई को, क्योंकि फिर ये सारा निजाम चेंज हो गया। ऐसी कोई बात है, कोई डील हो रही है आपकी? एहसान साहब आप ये जो बार बार डील का नाम लेते हैं ये तो बिल्कुल हमारे सफ़े हस्ती में नहीं है ये। अच्छा ठीक है। और रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि रिलीफ के लिए, क्योंकि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं, अलीमा खान की रहाई, बुशरा बीबी की रहाई, इमरान खान का आपका बार-बार कहना कि 1 महीने में रहा जाए, डील नहीं तो और क्या? नहीं डील होती तो 1.5 साल से जेल में पाबंद सलासल ना होते, जितनी सख्तियों का वो मुकाबला कर रहे हैं इस तरह ना होती, डील होती तो वो फौरी वहां से निकलते 5 स्टार एरोप्लेन में बैठते और लंदन बैठे होते। अच्छा। डील होती तो इतनी सख्तियों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, ना उनको पैसे की जरूरत है, ना उनको किसी और चीज की जरूरत है, वो सिर्फ अपनी आवाम, पाकिस्तानी आवाम, 25 करोड़ आवाम जिन्होंने वोट दिया हुआ है उनके लिए वो पाबंद सलासल हुए हुए हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला डील नहीं होगी, रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ना उनके ऊपर कोई केस है, सारे झूठे सियासी केस है, उन सब में बरी हो गए हैं, एक जो रह गया था उसके ऊपर भी जेल में बैठ के हर केस, बात मुझे कर रहे थे, मिनट ठहरे पहले मेरी बात पूरी होने दे, ये जो केस जितने बनाए थे सब में से वो रिहा हो गए, एक केस की जमानत हो गई है वो भी आजकल में हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान जल्द हमारे। अच्छा फाइनल राउंड है जनाब मुकीम मोहम्मद साहब, आप ये बताएं अभी जो मैडम बात कर रही हैं कि इमरान खान भी रहा हो जाएंगे, मैं ये आपसे पूछता हूं कि आप एक सियासी तजिया नगार हैं और आपने इंडियन टीवी पे धूम मचाई होती है, तो आप ये प्रोडिक्ट करें क्या इमरान खान की रहाई यकीनी है?
किसी डील का नतीजा है? सर जी अभी तक तो कोई डील, अगर डील हो रही होती तो ये सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन ना देनी पड़ती, ये तरमीमों के चक्कर ना होते, ये अदलिया में खुफिया हाथ काम ना कर रहे होते, ये जजों को तकसीम करने की बात ना होती, ये तेरा जज और मेरा जज के नारे ना लग रहे होते, ये असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशें ना हो रही होती, ये इमरान खान के बहनों और बीवी को लड़ाने की साजिश ना हो रही होती, ये केपीके में इख्तलाफात को हवा न दी जाती। ठीक, ये सारी चीजें देखते हुए मतलब अगर डील या ढील को छोटी मोटी कोई कहीं रियायत मिल गई है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कुल्ली तौर के ऊपर कोई चीज सेटल हो गई है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने और बरसर इक़्तिदार जमातों ने अपनी तरफ से कार्ड लगा दिए हैं कि दूर दूर तक हमें कोई खतरा नहीं। अच्छा साहब ये बताएं कि ये 9 नवंबर को ये जलसा कर रहे हैं स्वाबी में, स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा का जिला है, वहां पर इनको जलसा करने का क्या फायदा होगा? ये तो इस्लामाबाद लाहौर की बात कर रहे थे, आप ये स्वाबी तक महदूद हो गए। सर ये है कि उनके लिए हालात साजगार नहीं है, एक। दूसरा ये है कि वर्कर्स ने जितनी मार खाई है और जितनी उन पर सख्तियां की गई हैं, मेरा ख्याल ये है कि अब पब्लिक उस इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं आ सकती। ठीक, फिर ये है कि उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। आजकल तो एक जलसा 5 करोड़ से ज्यादा खर्चा मांगता है। सही बात। तो ये सब देखते हुए उन्होंने भी अब आसान काम शुरू कर दिया कि चलो अपने इलाके में ही तंबू कनातें लगा के कोरोला रपर डाल लो। अच्छा मुकीम साहब, मैं मैनचेस्टर से चलता हूँ, हुमायूं साहब आप ये बताएं कि ये जलसा ये स्वाबी का है, ये जरूरी था या कि इन्हें लाहौर और कराची में जलसा करना चाहिए? एहसान साहब, बात इतनी कि अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक करना ये सियासी जमातों के लिए बहुत जरूरी होता है, वरना वो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। और पॉलिसियां जहां तक यानी वो एक टाइम आया था इमरान खान साहब के साथ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो बिल्कुल जीरो हो गई थी, बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ये अच्छा। तो आपको भी पता है कि एक धक्का लगा जिसमें दोबारा उनको मकबूलियत मिली और दोबारा ये तो अदम दिमाग उनके काम आ गई ना, अदम दिमाग की वजह से पॉपुलर हो गए। जी जी, और यही हालात ये है कि अगर आज भी खामोशी से बैठ जाए और इमरान खान जेल में हो और यानी लीडर जो बाहर हैं जो कुछ गिनती के हैं वो भी अगर कुछ ना करें तो ये जमात तो बिल्कुल ही एक ऐसी पोजीशन में चली जाएगी जहां से फिर इनका सामने आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी ज़ाहिद इकबाल साहब, मैंने ये पूछा है कि इनको पीटीए को स्वाबी में जलसा करने का क्या फायदा है, इनको कराची में, लाहौर में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा पहला मैं एक पिछला सवाल था कि इंतखाबात के हवाले से मैं थोड़ी सी गुजारिश उसमें करनी चाहूँ, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। वेलकम जी। अच्छा ऐसे है कि देखिए अभी आप इंतखाबात की बात हो रही है तो इंतखाबात के तो गुजारे नहीं। देखिए जिस तरह के मुल्क के हालात है, सियासत में अफरा तफरी फैली हुई है, तो मुल्क के आगे देखिए इकोनॉमी किस हद तक रेट है, कितने मसाइल हैं यहाँ पर। तो इस वक्त सबसे पहली बात यह कि मुल्क की सियासी हालात ठीक हो ताकि हमारी क्या बेहतर हो सके, मुल्क तरक्की कर सके और लोगों के जो कॉमन आम आदमी के मसाइल हैं वो हल हो सके। उसके लिए है कि जो धांधीदार इंतखाबात हैं उनको खत्म करके लाजमी एक नए इंतखाबात हो, उसमें जितने भी खराजात हो, जितने भी मसाइल, लेकिन वो उससे बेहतर है इंतखाबात ना करवाने से। तो बेहतर यही है कि एक बिल्कुल शफाफ इंतखाबात हो जिसमें किसी को। चलो ये पॉइंट आ गया, स्वाबी के जलसे के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट आप कहा। अच्छा दूसरा स्वाबी का जलसा मैं कहता हूँ कि ये भी बात है उनकी कि अभी जिस तरह के देखा कि कितना जब चौक की तरफ जाते हैं सब कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क के आगे हालात कैसे हैं। गरीब को तो प्यारी भी नहीं लग रही। तो जब ऐसा होता है तो फिर आपको पता है कि वहां भी इतनी परेशान होती है, वो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा, कोई रिजेंटमेंट भी नहीं आएगी, गवर्नमेंट भी होगी, एक जलसा करके अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रखें। मेरा ख्याल इस वक्त यही बेहतर स्ट्रेटेजी है। और आने वाले दिनों में मैं आपको एक और छोटी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जलसे करें या ना करें, आप इमरान खान को, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ, आप इमरान खान को ज्यादा देर
रखा नहीं जा सकेगा पाबंद सलासल, ये मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ। अब बहुत हो गया है, जो उन्होंने काम एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए थे, जो गवर्नमेंट को भी चाहिए थे, उन्होंने कर लिए हैं। गवर्नमेंट तो वैसे भी जवाब शरीफ की है, वो समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं, जो उनको कहता है कर लेते हैं, उनका तो अपना विजन है ही कोई नहीं। ये जमनार साहब आप लास्ट में एक सेकंड 10 एहसान साहब सेकंड मुझे ये बताएं, आप कहते हैं स्वाबी में क्यों जलसा रखा है, हाँ। मुझे बताएं कि वो मुझे एतराज है। पाकिस्तान का एरिया नहीं है, वो पाकिस्तान का इलाका नहीं है, वो गैर इलाके में रख दिए। भाई आप वो जिनको मैसेज पाकिस्तान देना का चाहते सूबा हैं वो है। कभी भी हल नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा, पूरे पाकिस्तान से आवाम वहां पहुंचेगी और पुरअमन तरीके से जलसा होगा। आज ये कह रही है कि आवाम तक जो पहुंचाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से स्वाबी का पहुंचेगा। जलसा हमारे लिए बहुत जरूरी है, जबकि बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि खून को गर्म रखने के लिए और पार्टी को मुतहर्रक रखने के लिए स्वाबी का जलसा बहुत ज़रूरी है। और मेरे पैनल ने ये भी कहा कि अगर ट्रंप आ गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान को रहा कर दिया जाएगा। और पैनल में ये भी बात हुई कि पाकिस्तान में जो तीनों सर्विसेज चीफ को 5 साल की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया गया है, इसके फ़ायदे सियासी हैं, इसका अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, उसका फैसला करना आपने।